Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I hope you all are fine. Today we will discuss various topics, but before starting our formal lecture, I will tell you कि हमने कल वाले लेक्चर में क्या डिस्कस किया. In previous lectures, we have discussed various items: CASI reorganization, foreign currency translation, and we have discussed unrealized holding gains and losses, and we have discussed equity-oriented deferred compensation, and we have discussed employee stock ownership plans, and we have discussed in previous lecture treasury stock and practical exercises. और डेफिनेटली आपको याद होगा कि प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेज में हमने प्रेफर्ड स्टॉक और कॉमन स्टॉक के ऊपर क्वेश्चन किए थे. थोड़े से मुश्किल थे, लेकिन मैंने आसान बना के समझाने की कोशिश की. आई होप कि यू हैव लर्न. टुडे वी विल डिस्कस वेरियस टॉपिक्स. Single step income statement we will discuss today. Today we will discuss basic elements of the income statement: net sales, cost of goods sold, operating expenses, operating revenue, and other revenue and other expenses, income statement and multiple step income statement. Today we will discuss these things. First of all, we will discuss what is income statement. The income statement summarizes the revenues and expenses generated by a company over the entire accounting period. That is called income statement. Income statement is prepared by the end of the financial period. What is the difference between multiple step income statement and single step income statement? 4 items we will consider under the heading of multiple step income statement: gross profit, operating income, income before taxes, and net income. क्या मतलब कि सबसे पहले हम डियर स्टूडेंट रेवेन्यू को कंसीडर करेंगे. रेवेन्यू इज अ बेसिकली ब्रॉड हेडिंग. अंडर द रेवेन्यू विच टाइप ऑफ रेवेन्यू, जस्ट लाइक सेल्स रेवेन्यू, सर्विसेज रेवेन्यू, एडमिशन फी रेवेन्यू एटसेट्रा. तो हम डिटेल लिखेंगे कि विच टाइप ऑफ रेवेन्यूज वी आर बेसिकली कंसिडरिंग. देन फ्रॉम द रेवेन्यू वी विल डिडक्ट द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फ्रॉम द रेवेन्यू. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मीन्स कि कास्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, कास्ट ऑफ सर्विसेज, वो हम माइनस कर देंगे. माइनस करने के बाद वी विल फाइंड आउट द ग्रॉस प्रॉफिट. फ्रॉम ग्रॉस प्रॉफिट वी विल डिडक्ट द ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. व्हाट आर द ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस? लाइक सेलिंग, मार्केटिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जनरल एक्सपेंसेस एटसेट्रा. Then we will find out the net income before taxes. Then we will deduct the taxes from the operating income, and answer will be the net income. ये थी multiple step income statement. Now we will discuss the single step income statement. Dear students, can you tell me what is the single step income statement? Very easy. Then we will prepare the single step income statement. हम क्या करेंगे, इसमें तमाम रेवेन्यू इकट्ठे कर लेंगे. I mean other income, other revenue. Other income and other revenue are not related with the operation of the business. तो हम उनको एक जगह इकट्ठा करके टोटल एक्सपेंस से माइनस कर देंगे. वी डोंट नीड टू बेसिकली
mention the detail of the revenue and the expenses. Basically, you can say कि मल्टीपल स्टेप इनकम स्टेटमेंट जो है वो डिटेल में डिस्कस की जाती है, जबकि सिंगल स्टेप डिटेल में डिस्कस नहीं की जाती. You can see on slide, left hand side is multiple step income statement, right hand side is single step income statement. You can see, first of all, when we will prepare the statement, we will write down the name of the business, then name of the statement, then period mentioned कि किस पीरियड के लिए आप बना रहे हैं. मल्टीपल स्टेप इनकम स्टेटमेंट में यू कैन सी कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमने मेंशन की है रेवेन्यू जो कि सेल्स है, देन हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस कर दिया, तो हमारे पास जो आंसर आया दैट इज कॉल्ड ग्रॉस प्रॉफिट. और ग्रॉस प्रॉफिट से हमने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस किया. ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की डिटेल आप देख सकते हैं, जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस गिवन है, एडवर्टाइजिंग है और अनकलेक्टिबल अकाउंट्स हैं, वो माइनस किया तो हमारे पास जो रिजल्ट आया दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग इनकम. ऑपरेटिंग इनकम के बाद हमने इसमें ये स्टूडेंट्स ऐड कर दी अदर इनकम. अदर इनकम लाइक दैट इंटरेस्ट इनकम. इफ यू हैव मनी इन योर बैंक and you are receiving interest on such deposit, that is called other income. Just like you have earned some dividend, that is called other income. वो आपने ऐड की, that is called income before interest and taxes. Then you will deduct the income taxes from income before taxes. That will be the net income. Now we will prepare the single step income statement. You can see कि हमने सबसे पहले तमाम रेवेन्यूज को इकट्ठा कर लिया. आई मीन सेल्स रेवेन्यू हमने लिखा और इसमें हमने अदर इनकम उसके ऊपर ऐड कर दी. जबकि मल्टीपल स्टेप इनकम स्टेटमेंट में आप देख सकते हैं कि अदर इनकम को हमने ऑपरेटिंग इनकम के बाद लिखा. ये डिफरेंस है मल्टीपल और सिंगल स्टेप में. हमने टोटल रेवेन्यू इकट्ठा कर लिया और रेवेन्यू हमने कम्युलेट करने के बाद माइनस कर दिए डियर स्टूडेंट्स ऑपरेटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस. तमाम एक्सपेंसेस की हमने एक हेडिंग लिख दी जिसमें हमने कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी इन्हीं एक्सपेंसेस के साथ मर्ज कर दिया और तमाम का टोटल करके हमने ग्रॉस प्रॉफिट से माइनस किया, तो हमारे पास जो रिजल्ट आया इनकम बिफोर टैक्सेस. एंड हमने डिडक्ट कर दिया tax from income from before taxes, that is called net income. That was the difference between multiple step income statement and single step income statement. I think कि आपने इसको समझ लिया होगा, बहुत आसान है, थोड़ी सी तवज्जो देने की ज़रूरत है तो इंशाअल्लाह आपको ये समझ आ जाएगी. तवज्जो के साथ यू नीड प्रैक्टिस. और मैंने जैसे कि आपको पहले भी बताया कि डू नॉट पुट ऑफ टिल टुमारो व्हाट यू कैन डू टुडे, कि आज का काम कल पर मत छोड़ें. अगर ऐसा किया तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के सब्जेक्ट में आपको अबूर नहीं हो सकेगा. नेक्स्ट स्टेप इज बेसिक एलिमेंट्स ऑफ द इनकम स्टेटमेंट. नेट सेल्स. व्हाट डज मीन बाय नेट सेल्स? सेल्स मीन इनकम जनरेटेड फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स from the provided services, that is called sales. Net sales mean sales minus sales return minus sales allowance minus discount. तीनों चीजों को सेल से माइनस करेंगे, that will be called net sales. What does mean sales return? Sales return mean sale return occurs when customer return damage, defective and unrequired goods to the seller, that is called sale return. What is sales allowance? Sale allowance क्या है? Sales allowance occur when customer agree
to keep such product in return for a reduction in the sale price. That is called sales allowance. Sales discount क्या है कि when supplier allowed some discount on the sales of the goods, that is called sales discount. Further discount की two types हैं, trade discount and cash discount. Trade discount means discount is allowed by the supplier at the time of transaction. That is called trade discount. And trade discount does not mention in the books of accounts. We were discussing credit term 210 net 30. If the customer will pay the money within 10 days, he or she can get the discount 2%. Otherwise, he or she must pay the amount within 30 days. It means 2 shows that percentage of discount and 10 shows that the discount period. Within this period, you will have to pay money, then you can get discount. And net 30 means total length of credit. That is called cash discount. Cost of goods sold. Cost of goods sold means the cost of manufacturing, cost of services. Cost of goods sold included payrolls, labors, materials, factory overhead. That is called cost of goods sold. Other operating revenue. What are the other operating revenues? जैसे कि already I have told you कि आपके operating revenues कौन से हैं? Operating expenses like selling expenses, administrative expenses, general expenses, interest expense, rent expense. These are the operating expenses. Other income are expenses. Other income means interest on deposits, dividend income, etc. That is called other income. Other expenses means like interest expenses, like various expenses. That is called other expenses. Net sales. Revenue from the sale of principal goods or services sold to customers. That is called revenue and sales. Shown net of discounts, returns and allowance. Already I have told you sales minus sales return minus sales discount minus sales allowance. That is called net sales. Cost of goods sold. How we can find out the cost of goods sold? The cost of goods sold that were sold to produce revenue. We will calculate the cost of goods sold in this way. First of all, we will consider the opening inventory plus purchases of raw material. That will be the cost of goods available for sale. इसमें से माइनस कर देंगे ending inventory. That will be called cost of goods sold. Now we can find out easily cost of goods sold. You can see in case of manufacturing concern company, how we can find out the cost of goods sold. Same procedure is here. First of all, we will write down the beginning inventory, then purchases of material. That will be the cost of goods available for sale minus ending inventory. That is called cost of goods sold. I think you have learned
to how to prepare the cost of goods sold. Other operating revenue reflects the nature of the business. यानी कि जैसे बिजनेस की नेचर होगी वैसे ही रेवेन्यू रिफ्लेक्ट करेगा. लाइक एग्जांपल्स लीज रेवेन्यू, रॉयल्टी रेवेन्यू, फाइनेंस चार्जेस एंड कमीशन रेवेन्यू. इन टर्मिनोलॉजी के बारे में आप बहुत अच्छे अंदाज में जानते हैं. बेसिकली these type of operating revenues. What are the operating expenses? Selling expenses results from the company effort to create sales. Examples: advertising, sales commission, sales supplies used. These are the examples of selling expenses. Administrative expenses. What are the administrative expenses? Relate to the general administration of the company's operation. Examples: salaries, wages, insurance and bad debt losses. These are the examples of administrative expenses. Other income or expenses, secondary activities not directly related to the operation of the business. That is called other income and other expenses. Like dividend income is other revenue, interest income, other revenue, gain and losses from sale of assets. It can be other income or other expense, interest expense, other expense. These are the items are included in other income or other expenses. Special income statement items, unusual or infrequent items disclosed separately, included with normal recurring revenues and expenses. If material disclosed separately before income taxes. यानी कि अगर ये आइटम बहुत इम्पोर्टेंट हो तो इनको हम शो कर सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं बिफोर द हेडिंग ऑफ इनकम टैक्सेस. Relate to options. Treatment for analysis. Primary analysis included, for secondary analysis that will be excluded. Special income statement items are continued. Equity in earnings of non-consolidated subsidiaries. What are these? If the investor owns 20% of the stock of the investee and investee reports income of $100,000, then investor $20,000 on its income statement and term will be used equity earnings. That is called equity in earnings. The investor's proportional share of the investee's net income and does not represent cash flow to the investors. Cash dividends received represent cash flow. What are the analysis issues? Investors' net income includes revenue of other entity. क्या मतलब कि आपके बिजनेस के मालिक ने कहीं और इन्वेस्ट किया हुआ है और वहां से अर्निंग आती है, दैट विल बी
included for analysis purposes, may represent and misrepresents ratios presented before tax, tax consequences typically immaterial. Income taxes related to operations. Which type of taxes are related to the operations? Like federal taxes, state taxes, and local taxes. Includes both paid and deferred taxes. Already we have discussed about the paid taxes and deferred taxes in last lecture. Discontinued operations. Sometimes आपके बिजनेस का कुछ ऑपरेशन डिसकंटिन्यू हो गया, कुछ दूसरा बिजनेस डिसकंटिन्यू हो गया, तो व्हाट विल बी द ट्रीटमेंट ऑफ डिसकंटिन्यूड operations? Reported net of income tax. What are the analysis issues in case of discontinued operation? Inadequate disclosure of associated assets, lack of historical profit and loss information on the discontinued operation. Extraordinary items. Sometimes we need to add the extraordinary items into the income statement. Sometimes we need to add extraordinary items into the income statement. Unusual and infrequent items. फॉर एग्जाम्पल कि खुदा न खास्ता अर्थक्वेक की वजह से डैमेजेस हो गए, कैजुअलिटीज हो गई अंडर द कंपनी रूल्स, तो दैट इज कॉल्ड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स. रिपोर्टेड नेट ऑफ इनकम टैक्स. एनालिसिस इश्यूज. व्हाट आर द एनालिसिस इश्यूज इन केस ऑफ extraordinary items? Excluded from primary analysis, included for secondary analysis. Dear students, after detailed discussion about the income statement items, now we will discuss we will solve the practical problem. You can see this problem has taken from your textbook. At the end of the chapter you can see this problem. तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है. First of all, we will read out the question from the slide. Uranium Mining Company, founded in 1990 to mine and market uranium, purchased a mine in 1991 for 900 million. It estimated that the uranium had a market value of $150 per ounce. By 1997, the market value had increased to $300 per ounce. Record for 1997 indicates the following. ये जी आइटम 1997 के रिकॉर्ड में इंडिकेट किए जा रहे हैं. क्या जी? प्रोडक्शन है 200,000 ounces, सेल्स है 230,000 ounces, डिलीवरीज है 190,000 ounces, कैश कलेक्शन है 210,000 ounces, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्लूडिंग डिप्लीशन है 50 million, सेलिंग एक्सपेंसेस है 2 million एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है 12,50,000. टैक्स रेट है 50% ऑफ द इनकम. प्रोडक्शन कास्ट पर ounce has remained constant over the last few years.
and the company has maintained the same production level. So what are the requirements to find out these problems? First requirement, compute the income for 1997 using each of the following bases. What are the bases? First base is receipt of cash. तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को तमाम रिक्वायरमेंट को हम वन बाय वन सॉल्व करेंगे, मेरे साथ रहिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने तमाम आइटम्स के लिए इनकम को कैलकुलेट करना है, लेकिन डिफरेंट स्टेजेस बताई हुई है। नंबर 1, कंपटीशन ऑफ इनकम, competition of income for 1997। क्या हम कैलकुलेट कर रहे हैं? कंपटीशन ऑफ इनकम फॉर 1997। फर्स्ट आइटम इज रिसीट ऑफ कैश, रिसीट ऑफ कैश से मुराद कि जब आपने कैश पे सेल की तो उस वक्त आपने क्या फाइंड आउट करना है कि इनकम हमारी क्या होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे सेल्स। तो क्वेश्चन पे जाके हम देखते हैं कि सेल हमारी दी हुई है कैश के ऊपर। अगर आप देख लें कैश कलेक्शन 210,000 ounces, 210,000 ounces multiply by 300 market value, $6.3 million हमारी सेल है। तो डी स्टूडेंट्स हमने क्या किया, उसने कहा डिफरेंट बेसिस के ऊपर आपने फाइंड आउट करना है। फर्स्ट बेस इज receipt of cash. Under the heading of receipt of cash, sales is basically 210,000 ounces और मार्केट रेट जिस पे हमने बेचना है 300 पर आउंस है। तो हमने क्या किया, 210 को मल्टीप्लाई बाय 300 से किया तो 6.3 मिलियन हमारे पास सेल्स आ गई, माइनस हम इसमें से कर देंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जिसकी कैलकुलेशन यूं है Dear students, how we will calculate the cost of goods sold? 250 ऑलरेडी प्राइस क्वेश्चन में गिवन है कास्ट की। तो हमने क्या किया कि 210,000 क्योंकि हमने आउंसेस बेचने हैं तो मल्टीप्लाई बाय 250, तो हमारे पास 52,50,000 की कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आई। हमने 52,50,000 को डिडक्ट कर दिया सेल में से, तो दैट विल बी दी ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट क्या है? $10.5 मिलियन आपके सामने है। 10.5 मिलियन आपको ग्रॉस प्रॉफिट हुआ। इसमें से आप माइनस कर दें एक्सपेंसेस को, माइनस selling expenses, $2 million, minus administrative expenses,
12,50,000। तो डी स्टूडेंट्स मैंने क्या किया कि ग्रास प्रॉफिट में से सेलिंग एक्सपेंसेस और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस को माइनस कर दिया और आप इन दोनों के साथ ब्रैकेट लगा दें। ब्रैकेट शोज दैट दी माइनस साइन ऑफ द अमाउंट। तो हमारे पास रिजल्ट जो आएगा उसको क्या कहेंगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस जब हमने ग्रास प्रॉफिट में से सेलिंग एक्सपेंसेस और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस को डी स्टूडेंट्स माइनस किया तो हमारे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस आ गया जो कि 72,50,000 है। तो आप देख सकते हैं बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन को गौर से पढ़ें, समझने की कोशिश करें, हर चीज़ गिवन है, कोई चीज़ मिसिंग नहीं है, तो वी कैन फाइंड आउट वेरी इजीली। देन माइनस टैक्सेस फ्रॉम प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस। टैक्सेस रेट इज गिवन 50% ऑफ इनकम, यानी कि 72,50,000 का, इसका 50% ले लें तो ये आ जाएगा 36,25,000। दैट इज कॉल्ड नेट इनकम। तो क्या किया हमने डियर स्टूडेंट्स कि हमने प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस में से टैक्सेस माइनस कर दिए। टैक्सेस रेट आपके क्वेश्चन में गिवन है 50% ऑफ द इनकम। 50% ऑफ इनकम हमारी क्या है, 72,50,000। हमने इसको 50% लिया तो हमारे पास जो रिजल्ट आया वो 36,25,000 आ गया। दैट इज आवर नेट इनकम। क्वेश्चन पे वापस जाते हैं, देखते हैं और क्या रिक्वायरमेंट है हमारे पास। तो हमारे पास रिक्वायरमेंट फर्स्ट ये थी कि हम फाइंड आउट कर सकें कि इनकम क्या है हमारी। डियर स्टूडेंट्स, हमने कॉस्ट 250 फाइंड आउट की इस क्वेश्चन में और कास्ट को उससे मल्टीप्लाई किया। तो हाउ वी कैन फाइंड आउट दी कॉस्ट, प्लीज जरा देखिए। कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बेसिकली गिवन है 50 मिलियन से। फार्मूला इसका फाइंड आउट करने का, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय टोटल प्रोडक्शन how we can find out the cost. Formula is basically given cost of production divided by total production तो डियर स्टूडेंट्स, फार्मूला क्या था, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोडक्शन। तो हमारे पास कॉस्ट भी गिवन है, यूनिट्स प्रोडक्शन 200,000 है, डिवाइड किया तो हमने जो रिजल्ट फाइंड आउट किया वो 250 पर आउंस है। तो ये हमारी कॉस्ट फाइंड आउट करने का मेथोडोलॉजी था। तो नेक्स्ट देखिए क्या रिक्वायरमेंट है डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट इज पॉइंट ऑफ सेल, यानी कि कंप्यूटेशन ऑफ इनकम ही करनी है लेकिन पॉइंट ऑफ सेल पे करनी है। तो पॉइंट ऑफ सेल जरा आप देखें क्वेश्चन में कहां पे गिवन है। पॉइंट ऑफ सेल आपका गिवन है जी 230,000, सेकंड नंबर पे दिया हुआ सेल्स 230,000 ऑunces। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब हमने ये चीज कैलकुलेट करनी है लेकिन हमारी अमाउंट जरा डिफरेंट होगी क्योंकि वी नीड टू फाइंड आउट द इनकम ऑन द पॉइंट ऑफ सेल्स। Computation of income on
पॉइंट ऑफ सेल्स। वही तरीक़ेकार है, सबसे पहले हम लिखेंगे सेल्स। सेल्स लिखने की क्या हमें चाहिए, सेल्स के लिए 2,30,000 पॉइंट ऑफ सेल्स गिवन है, मल्टीप्लाई बाय 300 ऑलरेडी मार्केट प्राइस गिवन है, तो अमाउंट विल बी दी 6.9 मिलियन। 69 बेसिकली मिलियन हमारा सेल्स रेवेन्यू है। हम सेल्स रेवेन्यू में से माइनस कर देंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। डियर स्टूडेंट्स, ऑलरेडी वी हैव फाइंड आउट दी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पर आउंस, जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में किया, लास्ट टॉपिक में, कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोडक्शन, तो हमारे पास 250 पर यूनिट हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगी। तो हमारी कॉस्ट ऑफ सेल जो है मल्टीप्लाई बाय 230,000 टू 250 मल्टीप्लाई बाय 250, तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आई वो 5,75,00,000 है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आप सेल्स में से माइनस करेंगे तो रिजल्ट विल बी दी ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रास प्रॉफिट हमारा कितना आ गया डियर स्टूडेंट्स, सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस की 1,15,00,000 हमारे पास ग्रास प्रॉफिट है। और ग्रास प्रॉफिट में से जैसे पहले आपने एक्सपेंसेस माइनस किए, आप एक्सपेंसेस माइनस करेंगे तो हमारे पास इनकम आ जाएगी माइनस सेलिंग एक्सपेंसेस, $2 million minus administrative expenses, $12,50,000, प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस। डियर स्टूडेंट्स, हमने क्या किया, सबसे पहले सेल्स कैलकुलेट की। सेल्स कैसे कैलकुलेट की कि हमने 230,000 आउंसेस मल्टीप्लाई बाय 300 मार्केट प्राइस, हमारे पास सेल आ गई। फिर हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फाइंड आउट की, फिर हमारे पास ग्रास प्रॉफिट आ गया 1,15,00,000। फिर हमने ग्रास प्रॉफिट में से सेलिंग एक्सपेंसेस और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस डिडक्ट किए तो हमारे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। $82,50,000। देन वी विल डिडक्ट दी टैक्सेस 50% ऑफ इनकम मीन 82,50,000। That will be the 41,25,000। That is called net income। तो हमने क्या किया, 50% टैक्स रेट इज गिवन इन योर क्वेश्चन और हमने टैक्स को डिडक्ट कर दिया इनकम से, तो बाकी आपके पास नेट इनकम आ गई आफ्टर टैक्सेस 41,25,000। वेरी इजी, ट्राई कीजिएगा इसको करने की, मैंने आपको समझाया है। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट हमारे पास है एंड ऑफ प्रोडक्शन बेसिस, एंड ऑफ कंप्यूटेशन। यही चीज हमने फाइंड आउट करनी है, लेकिन एंड ऑफ प्रोडक्शन बेसिस भी करनी है। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम
वही सबसे पहले सेल्स लिखेंगे, क्वेश्चन पे जाएंगे, प्रोडक्शन ढूंढने की कोशिश करेंगे। एंड ऑफ प्रोडक्शन इज गिवन 200,000 आउंसेस, इसकी बेस पे हम कैलकुलेट करेंगे। तो सेल्स डियर स्टूडेंट्स क्या फार्मूला था, 200,000 सेल प्रोडक्शन मल्टीप्लाई बाय 300 ये सेल्स आ गई माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मल्टीप्लाई बाय 250 तो डियर स्टूडेंट्स इसमें हमने क्या किया, वेरी सिंपल कि सेल्स हमने ली, सेल्स हमने प्रोडक्शन बेस पे ली, प्रोडक्शन हमारी 200,000 यूनिट थी, मल्टीप्लाई कर दिया मार्केट रेट के साथ, कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ले ली, माइनस कर दी, हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। और ग्रॉस प्रॉफिट से हम एज यूजुअल सेलिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस को माइनस कर देंगे, माइनस सेलिंग एक्सपेंसेस वही 20 लाख है, माइनस एडमिनिस्ट्रेटिव 12,50,000, प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस 67,50,000 माइनस कर देंगे टैक्सेस, टैक्सेस का रेट गिवन है 50% ऑफ इनकम, नेट इनकम विल बी दी $33,75,000। डियर स्टूडेंट्स सिर्फ कैलकुलेशन में प्रॉब्लम सेल्स और कॉस्ट को कैलकुलेट करने का प्रॉब्लम है, वो बेसिक फार्मूला रखें, जिस बेस पे उसने क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट दी हुई है उसी बेस पे डेटा भी गिवन है। अगर प्रोडक्शन बेस की बात कर रहा है प्रोडक्शन का डेटा है, सेल पॉइंट की बात करता है सेल्स का डेटा है, जिस बेस की भी वो बात कर रहा है रिसीट ऑफ कैश का अगर बेस की बात करता है तो वो भी डेटा है। उस डेटे से आपने मार्केट रेट से मल्टीप्लाई कर देना है तो सेल आ जाएगी, और कॉस्ट के रेट से मल्टीप्लाई कर देना है तो कॉस्ट आ जाएगी। तो वेरी इजी। लास्ट वन इज क्या है, देखें कौन सी बेस है, बेस्ड ऑन डिलीवरी, डिलीवरी की बेस पे है, वो है आपके पास क्वेश्चन में 190,000 आउंसेस। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम on the basis of deliveries, sales। फर्स्ट ऑफ ऑल सेल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे डियर स्टूडेंट्स, अभी मैंने बताया, बहुत आसान है, बता सकते हैं आप कि 190,000 मल्टीप्लाई बाय 300 रेट गिवन है, ₹5,70,00,000 माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, वो कैसे कि 190,000 मल्टीप्लाई बाय 250, कॉस्ट हमने फाइंड आउट की हुई है और अमाउंट आएगी ₹4,75,00,000। और ग्रास प्रॉफिट हमारे पास आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स $95 लाख। तो डियर स्टूडेंट्स में हमने सेम प्रोसीजर अडॉप्ट किया कि सेल्स हमने फाइंड आउट की, सेल्स कैसे फाइंड आउट की
कि आपके प्रोडक्शन बेस दी हुई है, मल्टीप्लाई में मार्केट रेट कॉस्ट दी हुई है, 250 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 95 लाख का जो है ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, माइनस हम सेलिंग एक्सपेंसेस करेंगे 2 मिलियन के हैं, माइनस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस वो गिवन है 12,50,000 के, ये भी माइनस कर देंगे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस। टैक्सेस गिवन है 50% ऑफ इनकम, इनकम इज गिवन ऑलरेडी वी हैव फाइंड आउट 62,50,000। तो डियर स्टूडेंट्स मैंने क्या किया कि टैक्सेस को माइनस करने जा रहा हूँ। टैक्सेस का रेट 50% इनकम का गिवन है, इनकम 62,50,000 है तो 50% उसका लिया तो 31,25,000 ये हम माइनस कर देंगे। नेट इनकम, तो नेट इनकम विल बी दी 31,25,000। बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो उम्मीद है कि अब ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। थोड़ा सा दोबारा रिपीट कर देता हूँ। एक कंपनी थी यूरेनियम की, उन्होंने यूरेनियम परचेज किया और वो उसको आप बेचना चाह रहे हैं। इसके वक्त मार्केट की प्राइस जो है वो $300 है। तो उसमें हमने इनकम फाइंड आउट करनी है 3 बेसिस के ऊपर कि अगर ये प्रोडक्शन बेसिस हो, पॉइंट ऑफ सेल्स हो, डिलीवरी बेसिस हो, तो उन बेसिस पे हर बेस पे बताएं कि नेट इनकम क्या होगी। और टैक्स रेट गिवन है 50% ऑफ द इनकम। तो आपने देखा कि चारों बेसिस के अंदर नेट इनकम इज डिफरेंट, क्योंकि बेसिस डिफरेंट है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि हाउ वी कैन फाइंड आउट द नेक्स्ट question and we can solve the next question. Next question is this question already has taken from your textbook. What is the question? You can see on slide. I will read out first. At the end of 2000, vendors destroyed your record. Fortunately, the controller had kept certain statistical data related to the income statement as follows. यानी कि क्रिमिनल्स ने आपका रिकॉर्ड डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन कुछ डेटा बच गया। वो डेटा इज रिलेटेड टू इनकम स्टेटमेंट। वो कौन सा डेटा है, 1 by 1 देखते हैं। Cost of goods sold was 2 million। Cost of goods sold का डेटा मौजूद है जो कि 2 million का है। Administrative expenses were 20% of the cost of sales but 10% of sales। ये बात समझने की है। Administrative expenses 20% कॉस्ट के हैं। अगर हम कॉस्ट देखें तो कॉस्ट हमारे पास 2 मिलियन है, तो 20% लें तो ये 4 लाख बनता है, यानी कि 4 लाख एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है। तो वो 10% किस चीज का है, 10% सेल का है, यानी कि सेल का अगर 10% लेंगे वो भी 4 लाख बनेगा। इसका मतलब है सेल को फाइंड आउट करने के हम नजदीक पहुंच गए। ये बात आपने माइंड में रखनी है जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो मस्ट कीप इन माइंड दिस थिंग, क्योंकि ये चीज हमें हेल्प करेगी फाइंड आउट करने में। सेलिंग एक्सपेंसेस वर 150% ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, यानी कि जितने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं उसका 150% सेलिंग एक्सपेंसेस होंगे। बॉन्ड पेपर वर 1 million with an average interest rate of 11%. The tax rate was 48%.
50,000 shares of common stock were outstanding for the entire year. 50,000 शेयर आपके आउटस्टैंडिंग है, यानी कि इशूड शेयर्स हैं. What is the requirement of the question? From the information given, reconstruct a multiple step income statement for the year. Includes earnings per share. यानी कि आपने अर्निंग पर शेयर भी फाइंड आउट करनी है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट डाउन द नेम ऑफ द बिजनेस. इफ नेम ऑफ बिजनेस नॉट गिवन, यू कैन राइट XYZ multiple step income statement for the year ended फर्स्ट ऑफ ऑल सेल्स, जो कि गिवन नहीं है. तो मैं नेक्स्ट पेज पे इसकी कैलकुलेशन करने लगा हूं. जरा देखिएगा कि जैसा कि उसने कहा कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 20% ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स है. कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या है? 2 million. इट मीन्स 400,000. हमारे पास क्या है? ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है. और उसने कहा ये 10% अगर हम सेल का लेंगे तो यही अमाउंट आएगी. तो इट मीन्स अगर हम सेल को 2 million से डबल कर दें, 4 million कर दें, यानी कि 10% ऑफ 40 लाख लें तो ये 4 लाख आएगा. इट मीन्स सेल्स इज 400,000, यानी 40 million की है. ठीक है जी. तो अभी हम वापस स्लाइड पे जाते हैं. तो सेल्स लिखते हैं हम 40 लाख की. ये हमारे पास सेल्स है. माइनस हम इसमें से करेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स, वो ऑलरेडी गिवन है 20 लाख की. तो रिमेनिंग हमारे पास जो ग्रॉस प्रॉफिट आया दैट इज दी 20 लाख. हमने क्या किया? सेल्स फाइंड आउट की. कॉस्ट ऑफ सेल्स गिवन है तो कॉस्ट ऑफ सेल्स को माइनस कर दिया सेल्स में से. तो नाउ वी हैव ग्रॉस प्रॉफिट 20 लाख. तो अब इसमें से हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे. माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. फर्स्ट ऑफ ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो कि हम फाइंड आउट कर चुके हैं, वो बनते हैं 4 लाख. 400,000 हम इसके साथ ब्रैकेट लगा देंगे. ब्रैकेट शोज दैट द माइनस साइन. देन माइनस सेलिंग एक्सपेंसेस. डियर स्टूडेंट्स, सेलिंग एक्सपेंसेस ने कहा कि 150% ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस. तो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे? नेक्स्ट स्लाइड में जरा देखिएगा. यहां पे मैं वर्किंग बेसिकली कर रहा हूं. आपके बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है 200,000 मल्टीप्लाई बाय 150 जो उसने कहा है. 400,000 इज योर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस मल्टीप्लाई बाय 150 डिवाइडेड बाय 100, 6 lakh. It means your selling expenses will be the 600,000.
कैसे कैलकुलेट किए? 4 लाख आपके एडमिनिस्ट्रेटिव थे, हमने कहा कि 150% ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव, तो हमने कैलकुलेशन की। नेक्स्ट पेज पे आपने देखा होगा 600,000, तो 600,000 विल बी द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस। That is called operating income. तो डियर स्टूडेंट्स क्या किया? ग्रॉस प्रॉफिट से माइनस कर दिए, क्या माइनस कर दिया? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 4 लाख के, सेलिंग एक्सपेंसेस 6 लाख के, तो हमारे पास जो ऑपरेटिंग इनकम आई वो है 10 लाख, यानी कि 1 मिलियन। माइनस इंटरेस्ट एक्सपेंस इज गिवन। डी स्टूडेंट्स, इंटरेस्ट एक्सपेंस गिवन है 11% है बॉन्ड का, तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? जरा देखिए नेक्स्ट स्लाइड, वर्किंग वाली स्लाइड पे मैं जा रहा हूं। ये आपका बेसिकली बॉन्ड है 10 लाख का, 11% उसके ऊपर इंटरेस्ट है। अगर आप मल्टीप्लाई करें और डिवाइड 100 से करें तो 110,000 विल बी दी इंटरेस्ट एक्सपेंस। वापस हम अपनी स्लाइड पे आएंगे तो 1,10,000 माइनस कर देंगे, रिमेनिंग बैलेंस विल बी दी 8,90,000। ठीक है जी, ये आ जाएगी इनकम आफ्टर एक्सपेंसेस। देन वी विल डिडक्ट दी बेसिकली taxes. What is rate of taxes? 48%. We will deduct 48%. Now basically we will move forward to the next slide for the calculation. $890,000 multiplied by 48% divided by 100, that will be the 427,200. That are the taxes minus taxes 427,200, 462,800 will be our net income. Dear students, जैसा कि आपने देखा कि हमने मल्टीपल स्टेप इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर की, तो हमारे पास 4,62,800 जो है ये बेसिकली नेट इनकम आ गई। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट इज बेसिकली अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर का फार्मूला क्या है? नेट इनकम डिवाइडेड बाय आउटस्टैंडिंग शेयर्स। तो वर्किंग वाली शीट पे मैं जाऊंगा, नेट इनकम divided by outstanding shares. Net income is 462,800 divided by 50,000 shares. डियर स्टूडेंट्स, मैंने कैलकुलेट किया बेसिकली क्या? अर्निंग पर शेयर। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट वाज दी अर्निंग पर शेयर। तो नेट इनकम डिवाइडेड बाय आउटस्टैंडिंग शेयर्स। नेट इनकम ऑलरेडी वी हैव कैलकुलेटेड 4,62,800 डिवाइडेड बाय 50,000 नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू $9.26 per share. That is our earning per share. बहुत आसान क्वेश्चन था, आई थिंक इसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम
फील नहीं हुआ होगा, आपने एंजॉय किया होगा इंशाल्लाह। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? डियर स्टूडेंट्स, द करंट प्रॉब्लम हैज टेकन फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक. I will read out the basically question. The following information for Dacher Automotives covers the year ended 2003. This is the data. Administrative expenses, dividend, various items are given. Selling expenses are also given. What is the requirement? First requirement is prepare a single step income statement, then prepare a multiple step income statement. Third requirement is assume that 100,000 shares of common stock are outstanding. Calculate the earnings per share before extraordinary items and the net earnings पर शेयर. बहुत आसान है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल प्रिपेयर दी सिंगल स्टेप इनकम स्टेटमेंट. मेरे साथ रहिएगा. सबसे पहले हम उसका स्ट्रक्चर बनाएंगे. नेम ऑफ द बिजनेस, सिंगल स्टेप income statement for the year ended तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सिंगल स्टेप इनकम स्टेटमेंट में सबसे पहले आपने तमाम रेवेन्यूज को लिख लेना है और फिर तमाम एक्सपेंसेस को माइनस कर देना है. तो फर्स्ट एक्सपेंस इज revenue is sales, $10 लाख प्लस अदर इनकम जो कि डिविडेंड इनकम है 10,000. टोटल रेवेन्यू $10,10,000 माइनस एक्सपेंसेस. फर्स्ट एक्सपेंसेस कॉस्ट ऑफ सेल्स 6,70,000. डियर स्टूडेंट्स, ये कॉस्ट ऑफ सेल्स कैसे आई मैं आपको उसका तरीक़ेकार बताता हूँ. आप क्वेश्चन पे वापस आए तो आपको एक मर्चेंडाइजिंग इन्वेंट्री ओपनिंग नज़र आ रही है. फर्स्ट एक मर्चेंडाइजिंग इन्वेंट्री आपको क्लोजिंग आ रही नज़र 31/12 और आपको एक परचेज नज़र आ रही होंगी. तो आप क्या करेंगे, ओपनिंग इन्वेंट्री यानी कि 6,50,000 प्लस परचेजेस 4,60,000 माइनस एंडिंग 4,40,000 इज इक्वल टू कास्ट ऑफ सेल्स. इस तरीके से 6,70,000 की अमाउंट है ये. ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या किया है, तमाम ऑपरेटिंग को एक हेड में ऐड करके 1,05,000 लिख दिया. किस किस को ऐड किया, इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस और सेलिंग एक्सपेंसेस को ऐड कर दिया. तो इसलिए 1,05,000 ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बन जाएंगे. फिर इंटरेस्ट एक्सपेंस है जी, $20,000. जब सबका टोटल किया तो ये 7,95,000 आपने माइनस कर दिया. तो रिजल्ट विल बी दी 215,000 इज आवर इनकम बिफोर taxes and extraordinary items minus
income taxes are given 100,000 or remaining balance will be 115,000. That is called income before extraordinary items minus extraordinary item flood loss, that will be the 30,000. Remaining balance will be the 85,000. That is called net income. डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपने देखा सिंगल स्टेप इनकम स्टेटमेंट में हमने कौन से स्टेप्स लिए। सबसे पहले हमने तमाम रेवेन्यूज को इकट्ठा कर लिया, फिर हमने तमाम एक्सपेंसेस को माइनस कर दिया, तो हमारे पास नेट इनकम आ गई, इनकम बिफोर टैक्सेस एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। देन हमने टैक्सेस को माइनस किया तो हमारे पास इनकम बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स आ गया। देन हमने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम जो कि फ्लड लॉस के नाम से था हमने माइनस किया तो हमारे पास टोटल नेट इनकम जो कि आपके सामने 85,000 है। बहुत आसान है, डेटा इज गिवन, नथिंग इज मिसिंग, यू कैन कैलकुलेट वेरी इजीली। नो हम बड़ी जल्दी से जाएंगे मल्टीपल स्टेप इनकम स्टेटमेंट की तरफ क्योंकि आपकी क्लास का टाइम ख़त्म होने वाला है, तो हम इसको वाइंड अप करना चाहेंगे। इसी तरीके से आप हेडिंग लिखेंगे और मल्टीपल स्टेप इनकम स्टेटमेंट लिखेंगे, फॉर द ईयर एंडेड लिखेंगे। मेरे साथ रहिएगा प्लीज़। डचर कंपनी मल्टीपल स्टेप इनकम स्टेटमेंट for the year ended first of all revenue, under the heading of revenue sales, $10 लाख गिवन है माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। डी स्टूडेंट्स, कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी गिवन है, तो यहां पे कैलकुलेट की गई है। आप देखें कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, बिगिनिंग इन्वेंट्री इज गिवन 650,000 प्लस परचेजेस 460,000 available for sale is 11,10,000 minus ending inventory 440,000 is equal to 670,000 is कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे यानी कि मल्टीपल स्टेप इनकम स्टेटमेंट में हम डिटेल में तमाम आइटम्स को मेंशन करेंगे, तो हमारे पास अब क्या आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। जैसा कि हमने सिंगल स्टेप इनकम स्टेटमेंट में ऐसा नहीं किया था। $330,000 will be the gross profit less operating expenses ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में हम डिटेल लिखेंगे। सबसे पहले सेलिंग 43,000, देन एडमिनिस्ट्रेटिव 62,000, total will be the 105,000, ये माइनस हो जाएगा, remaining balance will be 225,000, that is called
ऑपरेटिंग इनकम प्लस अदर इनकम, अदर इनकम में आएगा डिविडेंड, $10,000 ऐड करेंगे, 235,000 will be the income before taxes and extra ordinary items, 235,000 minus income taxes जो कि given है 100,000, then that will be the income before extra ordinary items, that will be the 115,000 minus extra ordinary items, that is flood loss 30,000, that is 85,000 नेट इनकम। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने क्या किया, वेरी सिंपल, कि मल्टीपल स्टेप इनकम स्टेटमेंट में हम रेवेन्यू को डिटेल में लिखा कि विच टाइप ऑफ रेवेन्यू, और हमने अदर रेवेन्यू, अदर इनकम को रेवेन्यू में ऐड नहीं किया। फिर उसके बाद हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को डिटेल में फाइंड आउट किया, फिर हमने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को अलग-अलग लिखा, फिर हमने क्या किया कि आखिर में जाके अदर इनकम को ऐड किया, जैसा कि सिंगल स्टेप इनकम स्टेटमेंट में हमें ऐसा नहीं किया। तो लेकिन दोनों सिस्टम में प्रॉफिट विल बी द सेम, यू कैन सी $85,000, और इन केस ऑफ सिंगल स्टेप इनकम स्टेटमेंट profit will be the same, $85,000. Now we will have to calculate the earning per share with extraordinary items and after. First of all, net income before extraordinary items divided by outstanding shares. अच्छा जी, इनकम बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स कितनी है? 115,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स 10,000, 1.15. शेयर्स आर 100,000. तो हमने क्या हम कैलकुलेट कर रहे हैं? अर्निंग पर शेयर. अर्निंग पर शेयर का फार्मूला क्या है? इनकम बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स डिवाइडेड बाय आउटस्टैंडिंग शेयर्स. इनकम बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स हमारे पास है 115,000, आउटस्टैंडिंग शेयर्स हमारे पास 1 लाख के हैं, डिवाइड कर दिया 1.15 पर शेयर विल बी दी अर्निंग पर शेयर. तो उसके बाद उसकी रिक्वायरमेंट ये थी कि आफ्टर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, तो उसका फार्मूला भी सेम है. तो लिखा क्या जाएगा? नेट इनकम डिवाइडेड बाय आउटस्टैंडिंग शेयर्स. नेट इनकम इज गिवन $85,000 divided by shares are given 100,000. 0.85 will be the earning per share. तो डियर स्टूडेंट्स, क्या हमने कैलकुलेट किया? अर्निंग पर शेयर आफ्टर दी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स एंड बिफोर दी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, बोथ आर डिफरेंट. ठीक है जी, पहले का 1.15 पर शेयर है,
दूसरे के मुताबिक 0.85 है। तो उम्मीद है कि आज ये जो मैंने न्यूमेरिकल किए हैं बहुत आसान थे, समझाने की मैंने पूरी कोशिश की कि आपने इसको समझ लिया होगा। और फार्मूला वही कि आज का काम कल पे मत छोड़ें। अगर आपने इन क्वेश्चन की आज प्रैक्टिस की तो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के कोर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आज का काम कल पे मत छोड़ें और आज का काम आज करके आप इस पे अबूर हासिल कर सकते हैं। तो dear students, today we have discussed various items like basic elements of the income statement, net sales, cost of goods sold, operating revenue, operating expenses, other income, other expenses, single step income statement, double step or multiple step income statement. These are the things already we have discussed today और उम्मीद है कि आपको ये बातें क्लियर हो गई होंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।